Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444 or 2342 1050 and 2331-0464. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद निहारिका। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजारों पर भी नजर डालेंगे। और श्रोताओं, आज सोमवार है, इसलिए हम आपके फोन भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में हम आपको जानकारी नहीं देते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस फोन नंबर से पहले 011 जरूर लगाएं। प्रश्नों के उत्तर और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निहारिका भोवानिया। जी शुक्रिया सोनू, and let's begin with the headlines for today. So benchmark domestic indices snap 5-day losing streak to end with gains of over 0.5%. Sensex adds nearly 500 points. Nifty closes at 23,753. Consumer price index for agricultural and rural labourers eases to 5.35% and 5.47% in November this year in comparison to the same month last year. And NSE and BSE to remain open for trading on February 1st, Saturday, on account of Union Budget 2025. प्रमुख घरेलू सूचकांक 5 दिनों की लगातार गिरावट से उबरते हुए 0.5% से अधिक की बढ़त पर हुए बंद। सेंसेक्स लगभग 500 अंकों के उछाल में रहा। निफ्टी 23,753 पर हुआ बंद। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों का खुदरा मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नवंबर में कम होकर 5.35% और 5.47% पर आ गया। और केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा को देखते हुए एनएसई और बीएसई 1 फरवरी को शनिवार के दिन कारोबार के लिए खुले रहेंगे। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। भारतीय शेयर बाजारों में 5 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज टूट गया और प्रमुख घरेलू सूचकांक 0.5% से अधिक की बढ़त पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.64% की तेजी के साथ 498 अंकों के उछाल से 78,540 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.7% की बढ़त दर्ज करता हुआ 166 अंक ऊपर 23,753 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था और प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा। जहां मिड कैप सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज कर पाया, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक 0.6% के नुकसान पर बंद हुआ। And let's talk about the stocks in detail now. Benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 0.5%, snapping their 5-day losing streak. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 498 points or 0.64% to close at 78,540. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, added 166 points or 0.7% to end at 23,753. The broader market indices at BSE displayed a mixed trend. The mid-cap index rose slightly by 0.1%, while the small-cap index lost 0.6%. In the Sensex index,
21 out of 30 companies ended higher. Among the top gainers, ITC surged over 2%. Tech Mahindra as well as HDFC Bank both added over 1.6% each, and IndusInd Bank rose over 1.5%. Conversely, in the top laggards, Zomato slumped over 2.8%, Maruti lost over 0.8%, and Nestle dropped more than 0.5%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, Realty gained over 1.3%, BankX rose 1%, and Metal advanced over 0.8%. And meanwhile, in the top laggards, telecommunication dipped more than 0.3%, industrials shed 0.22%, and auto lost over 0.1%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,452 declined and 1,636 companies advanced, while 130 remain unchanged. At the National Stock Exchange, 46 companies hit their 52-week high, while 82 hit their 52-week low. इस बीच हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता दिल्ली से योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए योगेश जी। जी, आप सभी को नमस्कार और आगामी वर्ष क्रिसमस की आप सभी को अभी से बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, आपको भी। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा जो सवाल है वो ये है कि पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं अपना, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम ज्यादातर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं इक्विटी का, तो इसमें एक्टिव फंड एक होते हैं और एक पैसिव फंड होते हैं। तो किस तरफ जाना सही रहेगा? यानी कि इंडेक्स फंड लेना बेटर ऑप्शन है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, या फिर एक्टिवली मैनेज जो फंड होते हैं उसकी तरफ जाया जाए? एक दूसरा सवाल ये है, 2025 आने वाला है, तो नए साल पे कोई ऐसी नई हैबिट या कोई ऐसी नई एडवाइस आप अगर देना चाहें कि एक बेहतर निवेशक हम लोग बन पाए? जी योगेश जी, आपको भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और जो आपका सवाल है कि म्यूचुअल फंड में पैसिव फंड्स की तरफ जाया जाए या एक्टिव फंड्स की तरफ, तो मोटे तौर पे एक बुनियादी अंतर यही है कि एक एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक्टिवली जो उनका मैंडेट होता है, जो फंड उस पर्टिकुलर फंड में जो एक कंपोजिशन रखा जाता है इक्विटी का या इक्विटी के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, उसको फॉलो करते हैं, या अगर उसमें डेट का कुछ पार्ट होना है उसको फॉलो करते हैं, और उसमें वो खुद अपने विवेक से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो चुनते हैं कि क्या रखना है। जबकि पैसिव फंड में एक फंड मैनेजर वहां भी होता है, लेकिन उसे सिर्फ फॉलो करना होता है जो उस पर्टिकुलर पैसिव फंड का, जिसको हम इंडेक्स फंड या ईटीएफ कहते हैं आमतौर पे, उसके जो भी बेंचमार्क इंडेक्स हैं उसके अंदर जो भी पैटर्न फॉलो किया गया है बेंचमार्क इंडेक्स को, उसी को फॉलो करना है अपने पैसिव फंड के अंदर। उसमें उसे अपना कोई डिस्क्रिशन, अपना कोई विवेक इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोनों में से बेहतर रास्ता क्या है, आसान रास्ता क्या है? मैं कहूंगा आसान रास्ता जो है वो तो पैसिव फंड का है, जिसमें आप बहुत आराम से निफ्टी इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड या सेंसेक्स या निफ्टी का ईटीएफ, या आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप मिड कैप भी जाना चाहें, अगर आप स्मॉल कैप भी जाना चाहें, वहां भी आपके पास इंडेक्स फंड या ईटीएफ के ऑप्शंस हैं, तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो एक कह लीजिए कि स्टेपिंग स्टोन है, और उसके आगे आप जरूरी नहीं है कि वहीं तक लिमिटेड रहें। आप उसके आगे एक्टिव फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं समय समय पर, और एक अपना बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप एक्टिव या पैसिव दोनों, ऐसा नहीं है कि आप दोनों अलग अलग रास्ते पे जाएं, दोनों का एक मिक्सचर लें शुरुआत करने के लिए, और बाजार के साथ अपना तारतम्य बिठाने के लिए पैसिव फंड से अगर आप शुरुआत करें तो वो आपके लिए आसान रास्ता पड़ता है। और दूसरा जो इनका था वो सबके लिए, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2025 में इन्वेस्टर्स क्या रखें अपना रेजोल्यूशन, या क्या चेंज, किस तरफ झुकाव हो। एक ही चीज आप ध्यान रखिए, हर दिन जो ये खबरें आती हैं, आज सेंसेक्स इतना ऊपर उठा है, इतना नीचे उठा है, उन पर बहुत ज्यादा आप ध्यान न दें। खबरों पर नजर रखें, लेकिन उसके चलते आपके हर महीने की एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए। उसके चलते हर महीने आपका जो इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। बाजार सेंटिमेंट से बहुत ज्यादा ड्रिवन होता है, लेकिन उस सेंटिमेंट से आपका डिसिप्लिन खराब नहीं होना चाहिए। I think you described a very important point, Rajiv ji, about discipline and investments, how disciplined one has to be in that. And we are also joined by our next caller, who's also from Delhi. Vijay, if you're with us, you can ask your question now. हाँ, नमस्कार जी।
जी नमस्कार, सवाल पूछिए विजय जी। मैडम मेरे पास HDFC लाइफ के स्टॉक है, 9,000 शेयर है मेरे पास और मैंने 3 साल पहले लिए थे ये, और अभी ये डाउन पे डाउन जा रहा है, तो इसका रीजन जान सकता हूँ? विजय जी, आपने इस प्रोग्राम के मैंडेट के विरुद्ध अपना सवाल रखा है। यहाँ पर शेयरों पर चर्चा नहीं होती, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज सेक्टर के बारे में बता सकते हैं। जी वैसे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को समझना चाहें तो ये एक सनराइज सेक्टर है जिसके भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा संदेह नहीं है। इसमें अच्छी वृद्धि होती रहेगी। शेयरों का जो उतार चढ़ाव है वो इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर है, इसलिए उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। और अब चलते हैं कोलकाता, जहां से अतानु साहा है हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। Good evening, madam. Good evening to everybody. My question is, what are the criteria to be a resilient stock market? What are the criteria to be a resilient stock market? And my second one, this is what about the bond future, mainly our statehood bond in India. Thank you very much. जी, इनकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जितना मैं समझ पाया कि ये एक रेजिलिएंट स्टॉक मार्केट कैसे बनता क्या है, सूचक है जी। तो देखिए, कोई भी स्टॉक मार्केट जो है वो रिफ्लेक्शन किस बात का है? एक स्टॉक जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी कंपनी को, जिस कंपनी को का वो स्टॉक है। मतलब स्टॉक क्या है? वो एक पार्ट ऑफ ओनरशिप है, बहुत छोटा पार्ट ही सही, लेकिन वो पार्ट ऑफ ओनरशिप है। तो बेसिकली कंपनी जैसा करेगी वैसा ही फाइनली स्टॉक को करना है। और एक कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, वो अपने पूरे इकोसिस्टम के अंदर, जिसे हम मोटे तौर पे इकोनॉमी कहते हैं, तो इकोनॉमी जैसा परफॉर्म करेगी उसके अंदर एक कंपनी उसी हिसाब से परफॉर्म करेगी। कोई कंपनी अच्छा करेगी, कोई कंपनी खराब करेगी, लेकिन मोटे तौर पे एक देश की इकोनॉमी जैसी चल रही होती है उसकी ज्यादातर कंपनियां वैसे ही चलेंगी। तो एक रेजिलेंट स्टॉक मार्केट के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आपके पास एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो सौभाग्य से हमारे पास है। और दूसरा उनका बॉन्ड्स के बारे में था कि क्या सिचुएशन है बॉन्ड्स की इंडिया में। जी, तो बॉन्ड मार्केट में अभी इंतजार है इस बात का कि आरबीआई कैसे आगे स्टेप्स लेने जा रहा है, क्योंकि इस समय जो इससे पहले वाली मॉनेटरी पॉलिसी थी वहां पर हमने देखा कि उन्होंने सीआरआर में कट किया है, लेकिन जो हमें फेडरल रिजर्व की तरफ से अमेरिका में देखने को मिल रहा है कि वो कई बार रेट कट कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने किया, छोटा किया लेकिन किया। आगे के लिए 2025 के लिए उन्होंने संकेत दिया कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी तक आरबीआई की तरफ से हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पर रेट कट कब शुरू होगा या कैसे होगा या कितना समय उसमें बाकी है। तो बॉन्ड मार्केट की मूवमेंट्स जो हैं वो एक तरफ आपके जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उन पे डिपेंडेंट करती है, साथ में आपकी जो करेंसी की स्ट्रेंथ है, डॉलर वर्सेस आईएनआर आप मोटे तौर पे समझ लें, और साथ में हमारे यहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन तीनों का एक मिला जुला असर हमारे बॉन्ड मार्केट पे होता है। अभी काफी डायनामिक सिचुएशन है और उसके हिसाब से मार्केट वेट एंड वॉच के मोड में है। Bilkul, and from Calcutta we are back to Delhi now. Our next caller happens to be from Delhi. So Aman Bharti is with us on call. Aman, please go ahead and ask your question. मैम नमस्कार, नमस्कार टू मार्केट मंत्रा टीम। मेरा सवाल था सर कि मेरा 2 साल का होरिजन है इन्वेस्टमेंट का, और इसमें करीब 2 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो प्लीज गाइड करें कि 2 ऐसे कौन से सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट करें तो बेटर रिटर्न है। जी अमन जी, इससे पहले सवाल में एक्टिव और पैसिव फंड्स की चर्चा हुई थी। क्या आपका कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है? अगर है या नहीं, अगर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, अगर वो पहले से इन्वेस्टेड नहीं है तो मेरी तो सलाह रहेगी कि 2 लाख रुपए वो 2 साल के टाइम होराइजन से अगर लेना चाहते हैं तो बहुत आराम से इंडेक्स फंड को चुन लें और उसमें पैसा लगा दें। और अगर एक साथ ना लगाना चाहें तो उसे हर महीने इसमें से कुछ कुछ पैसे बांट करके लगाते रहें, या इस 2 लाख के अमाउंट को वो 3-4 इंस्टॉलमेंट में कर दें कि
25% इस महीने, उसके बाद 25% अगले महीने। लेकिन अभी अगर आप 2 लाख के कॉर्पस के साथ 2 साल का होराइजन के लेकर के चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्यों आपको रिसर्च और परेशानी उठानी है। आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, भूल जाइए। अगले कॉलर के पास जाने से पहले बता दें कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर 84 रुपए 11 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। रुपए में ये गिरावट अमरीकी डॉलर में बढ़त के बीच आई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक आज दिन के कारोबार में 108.09 पर था। और अब तेलंगाना से अरविंद हैं हमारे अगले कॉलर। आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। Good evening, madam. Good evening. I have 2 questions. One question related to travel tourism sector. अभी इंडिया is a growing economy. More people are having disposable income. Domestic tourism or foreign, they are going for foreign locations also, and hospitality, medical tourism. Based on this, what is this prospects of tourism, travel industry, hospitality industry, listed stocks in India, and the sectoral cycle based on that. Another question is whether it is possible for Indian companies to bill in Indian rupees itself for export, so as to reduce their exposure to foreign currencies exchange rates. Thank you. जी राजीव जी। जी, टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में इनका सवाल है और ये क्षेत्र बीच में काफी बढ़ता हुआ दिखा था हमें। और खास करके जब कोरोना की महामारी से हम लोग उभरे थे उसके बाद तो ये कहा जा रहा था कि रिवेंज टूरिज्म चल रहा है इस देश के अंदर, या तो एक वो दौर हमने देखा जब इस सेक्टर के शेयर काफी ज्यादा चले थे। लेकिन उसके बाद फिर कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा चल जाती है तो उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का फेज आता है, प्लेटो आ जाता है। जी, तो चूंकि इनमें काफी ज्यादा एक्सुबरेंस बन गया था, उसके बाद फिर एक नॉर्मलाइजेशन का फेज भी चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि इस सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसी हैं, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के कोई संदेह नहीं है। ये सेक्टर जो है, अगर आप इनमें अच्छी तरह से रिसर्च करके अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसे टाइम देंगे तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन आप जिस भी शेयर में पैसा लगाएं उसके वैल्यूएशन को, खास तौर पे वैल्यूएशन को आपको हमेशा ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में देखना होता है। कोई जरूरी नहीं कि अगर हम वैल्यूएशन अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल के सेंस में देख रहे हैं और कोई कंपनी 25 पीई पर है प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे और कोई अगर 40 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है, तो हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते एज ए थंब रूल कि हाँ 25 वाला ठीक सस्ता है वो खरीद लो। हो सकता है कि जो 40 के पीई पर है उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी है, इसलिए वो ज्यादा अच्छे प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है। तो आपको वो सारी चीजें एनालाइज करके देखनी होंगी। सेक्टर जिस पर आपकी नजर है वो अच्छा है। Very interesting observations coming in about the shares in the tourism sector. And our next caller happens to be from Delhi. Ranjan is with us on call. Ranjan, you can ask your question now. Yeah, very good evening, and very good evening to Market Mantra team. जी मेरा सवाल है एक्चुअली मार्च मंथ में, मैंने इसी साल मार्च 2024 में अराउंड 28 लाख का इन्वेस्ट किया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने डिफरेंट फंड में, मल्टीपल फंड में हमने इन्वेस्ट किया है। और ड्यू टू ये जो सडन जो डाउनफॉल लास्ट 1-2 महीने से हो रहा है, मैं ऑलरेडी 2 से 2.5 लाख का नुकसान कर चुका हूँ। तो अभी जो मुझे जैसे सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर ट्रम्प के शासनकाल में ये फिर से और कुछ मार्केट के गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपके हिसाब से क्या राय है, क्या मुझे लॉस में ही फंड को सेल आउट कर देना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए कि वापस और ज्यादा नुकसान ना हो? इसके बारे में थोड़ा मुझे प्लीज गाइड करें। धन्यवाद। जी, देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमेशा ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबी अवधि के लिए होना चाहिए, कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल इस तरह का ध्यान रखते हुए। और चूंकि आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपने ज्यादातर इक्विटी फंड्स में ये पैसा लगा रखा है। तो इक्विटी फंड्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो 3 साल से लेकर के 5 साल, 7 साल इस तरह का एक लंबे समय का टाइम होराइजन आपके मन में होना चाहिए। और उसके बीच में अभी जो आप गिरावट देख रहे हैं, इस तरह के उतार चढ़ाव बाजार में आते ही रहेंगे। बाजार कभी कोई सीधी रेखा में नहीं चलने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर के, अगर आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है, आप उसको एक बार किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक करा लीजिए कि हाँ आपका पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं। लेकिन अगर सवाल यह है कि हाँ हमें इक्विटी के अंदर अभी पैसा रखना है या सब निकाल लेना है, तो सीधी सी बात है, रखिए और इंतजार कीजिए। लेकिन आपका सिलेक्शन ऑफ फंड्स
वो सही होना चाहिए, वो एक बार चेक करवा लीजिए। Right, and before we go on to our next caller, let's just quickly talk about the next story. So, All India Consumer Price Index for agricultural labourers, or CPI-AL, and rural labourers, that is CPI-RL, for November this year, registered an increase of 5 points each, reaching levels of 1,320 and 1,331. Now, according to the data released by the Ministry of Labour and Employment today, the CPI-AL and CPI-RL for November eased to 5.35% and 5.47%, compared to 7.37% and 7.13% in the same month last year. The corresponding figures for October this year were at 5.96% for CPI-AL and 6% for CPI-RL. The data showed that all sub-indices, including food, pan, supari, fuel and light, clothing, bedding and footwear and miscellaneous for both agricultural and rural labourers marked marginal rise in November. और अब स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक खबर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने आज घोषणा की कि वे अगले वर्ष 1 फरवरी को शनिवार के दिन कारोबारी सत्र आयोजित करेंगे, क्योंकि उस दिन केंद्रीय बजट 2025 प्रस्तुत किया जाएगा। आज जारी सर्कुलर में दोनों बाजारों ने कहा कि वे सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक सामान्य कारोबार के लिए खुले रहेंगे। जहां इक्विटी बाजारों में उस दिन नियमित कारोबारी सत्र होगा, वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार सुबह के सत्र में शाम 5 बजे तक कारोबार के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर शनिवार और रविवार को भारत के शेयर बाजारों में कारोबार बंद रहता है। हालांकि किसी विशेष अवसर पर इन दिनों में भी विशेष कारोबारी सत्र आयोजित किया जाता है। बीएसई और एनएसई ने वर्ष 2025 के लिए शेयर बाजारों में छुट्टियों की सूची भी जारी की। अगले वर्ष पहली छुट्टी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 26 फरवरी को होगी। स्टॉक मार्केट अवकाश कैलेंडर के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में बीएसई और एनएसई में 14 कारोबारी दिवस के दौरान कारोबार बंद रहेगा। बेंगलोर से एनआर प्रसाद जुड़ गए हैं हमारे साथ। सवाल पूछिए, आपका स्वागत है। Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Yeah, please ask your question. Mr. Ranjan, there are two questions. The first question is, see, this mid-cap, topmost 10 valued companies lost almost 4.95 lakhs of rupees during the last 2 months' time, and largely taking a beating on the IT and the banking sector. Would these revive in the next 4 weeks, say by end January? My second question is, in the mutual funds, wherever there are hybrid mutual funds are there, how does the NAV is calculated? Especially, I just want to know, in the hybrid, what is the investment in the stock market? Thank you. These are my two questions. Ji. Mr. Prasad, as far as the mid-cap's performance is concerned, it is really difficult to predict the movement in next 4 weeks. It may go up, it may go down. I am not an astrologer, and I can't give you that directional call. सेकेंडली, जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को लेकर के आपका सवाल है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर भी कई तरह के अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। उनमें कुछ एग्रेसिव स्ट्रेटजी वाले होते हैं, कुछ थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, और उसके हिसाब से उनका मिक्स जो है वो बदलता रहता है इक्विटी और डेट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर एग्रेसिव फंड्स हैं तो उनमें इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा होगा, अगर वो कंजर्वेटिव फंड हैं तो उनके अंदर डेट का हिस्सा ज़्यादा होगा। और जहाँ तक एनएवी के कैलकुलेशन का सवाल है, उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। वो अपना जितना भी पार्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ रखते हैं, उसकी वैल्यू टोटल आपके जो भी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके उसकी एनएवी निकाल ली जाती है। And let's quickly also go on to our next caller. Mallikarjun is with us from Karnataka. Please ask your question. Hello. Hi, welcome to Market Mantra. Good evening, ma'am. जी, गुड इवनिंग। जल्दी से सवाल पूछिए मल्लिकार्जुन जी। मैं 65 साल का हूँ, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मेरे उम्र के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई एज, which this one share will be better, and is it necessary to have a demat accounts? And you suggest me the ideal one. Which one is what you call this
जी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर नो, ओके, तो उसमें ये करना ठीक रहेगा। जी मल्लिकार्जुन जी, 30 सेकंड के अंदर आपको पूरा पोर्टफोलियो एलोकेशन बताना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, चूंकि आप रिटायर्ड हैं, 65 साल की उम्र है आपकी, तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स में ही रहना चाहिए। इक्विटी का हिस्सा कम रखना चाहिए, डेट का हिस्सा ज्यादा रखना चाहिए, मोटे तौर पे यही कह सकते हैं। और इक्विटी में अगर डायरेक्टली शेयर्स आपको खरीदने हैं तो जरूर आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। अब चलते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्ति कर्मी समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। और अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर, जहां पर हमने आज देखा कि एक मिक्स्ड कारोबार था। 4 बढ़त के साथ बंद हुए और एक में हमने गिरावट देखी। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.5% से अधिक के उछाल पर रहा। जापान के निक्केई सूचकांक में 1% से अधिक की बढ़त आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% से अधिक की बढ़त में रहे। इस बीच चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.5% की गिरावट आई। प्रमुख यूरोपीय बाजारों में दिन के कारोबार में रुख मिला जुला था। लंदन के फुटसी में 0.1% से अधिक की बढ़त, वहीं जर्मनी के डैक्स में 0.1% से अधिक की गिरावट थी और फ्रांस का कैक 0.04% के मामूली नुकसान पर था। And let's also quickly talk about oil prices. Oil prices slipped today. Brent crude was trading at $72.77 per barrel, losing over 0.23%. WTI crude also fell nearly 0.2% to trade at around $69.33 per barrel, according to the latest reports. और सोने की ओर चले तो सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.35% गिरकर 76,330 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.61% बढ़कर 88,970 रुपए प्रति किलो के स्तर पर दर्ज थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.34% गिरकर 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। And we also have a caller from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please quickly ask your question. हाँ, नमस्कार जी मैडम जी। नमस्ते। जी सवाल पूछे। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम जी, ये जो अपना आपका शेयर मार्केट का ये प्रभाव दोपहर 3:10 पे भी एक बार आया करता था, वो क्यों नहीं आता? और मेरा ये मेन सवाल ये है कि अगर मैं 2-3 किलो सोना इकट्ठा खरीद लूँ, उसमें क्या इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? क्योंकि देखा गया है कि 1 साल के अंदर 62,000 से एकदम 76,000 आज की डेट में हो रहा है। जी नितिन जी, पहले सवाल का जवाब तो आपको कार्यक्रम के प्रस्तोता ही दे पाएंगे, लेकिन 2-3 किलो सोना इकट्ठा खरीदना जो है ये डिपेंड करता है इस पर कि आपका पूरा पोर्टफोलियो कितना है। पूरा पोर्टफोलियो मतलब उसमें हर तरह के इन्वेस्टमेंट, आप सारे एसेट क्लास जोड़ लीजिए, शेयर में कितना है, आपने बैंकों में कितना रखा है, एफडी में या दूसरे अकाउंट्स में, और डेट फंड्स में कितना है, रियल स्टेट आपके पास कितना है, आपकी जो पूरी नेटवर्थ है उसके कंपैरिजन में आपको देखना पड़ेगा। मोटे तौर पे ये माना जाता है कि आपके इस तरह के पूरे पोर्टफोलियो में गोल्ड जो है, सोना जो है, वो 10-15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक धारणा है लोगों की, क्योंकि इसमें आपको मोस्टली जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, 1 साल के अंदर बेशक आपको बहुत ज्यादा चाल दिख गई है, लेकिन अगर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल का चार्ट उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए 10-15% अपने पोर्टफोलियो में रखें। And we're also quickly heading to the close of today's Market Mantra. We also quickly want to let our listeners know in our bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m. We will bring an insightful discussion on government's Atal Innovation Mission, strengthening India's innovation and entrepreneurship ecosystem. We would be joined in our studios by Dr. Chintan Vaishnav, Mission Director of Atal Innovation Mission, Niti Aayog. और अब समय समाप्त हो गया। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices snap 5-day losing streak to end with gains of over 0.5%. Sensex adds nearly 500 points. Nifty closes at 23,753. Consumer price index for agriculture and rural labourers eases to 5.35% and 5.47% in November this year. And that's all we have in Market Mantra today. Goodbye.
Mantra. Market Mantra. Mantra. Market Mantra.